Okay, now few steps are remaining only. See, after creating a directory, okay, in D drive we have created one folder, NID project. Okay, name is NID project. So in that folder we will add Cordova. We will add Cordova. तो कैसे करेंगे? डी ड्राइव में जाओ, पहले वो फोल्डर में जाओ. फोल्डर में जाने के लिए सीडी लिखना है ना. सीडी लिखो और फोल्डर का नेम लिखो. तो तुम आ गए वो फोल्डर में. ठीक है. अभी फोल्डर में क्या करो, कमांड लिखना है कोडोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉइड. ठीक है. तो एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म ऐड हो जाएगा. यहाँ पे कमांड है ये कोडोवा प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉइड. ऐसे लिखने के बाद ऐसे कुछ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगे. ऐड करने के बाद बिल्ड करना है, उधर ही पे कोडोवा बिल्ड एंड्रॉइड लिखना है. उसके बाद यहाँ पे अलाउ एक्सेस पूछेगा, अलाउ करो. देन तुम्हारा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली. ये सब कुछ नहीं हो गया 3 स्टेप्स. ठीक है. जब सक्सेस हो जाएगा, लॉन्च सक्सेस, तो ऐसा बन के आएगा कुछ. ठीक है. स्क्रीन पे रेडी, Apache Cordova device is ready. After install, build and launch successful, we will get the emulator. Emulator में तो virtual device दिखाई देगा ऐसा. These are the some of the steps. ठीक है. जिसके पास 8 GB है, they can do it. The system lag नहीं, you can try it. Hardware software I will provide. This 7 software. 6 ही है. Android SDK means Android Studio only. 6 setups are there that I will provide. Okay. Okay, let's start the practical also. क्या practical है? 1 second. If you want to install, if you want to perform practical in your mobile, you have to install SPCK editor in your mobile. So first install. Other option क्या है? Install SPCK editor in your mobile. So after that we can perform these programs. Okay. So then factorial program. ठीक है. Factorial program है in JavaScript. Find sum of 2 numbers using JavaScript. So these are the programs that we have to perform. Reverse a number, Armstrong number, then calculator. Create an application to check whether a number is prime number or not. Square root of a number, to find square of a number. फिर 10th वाला प्रोग्राम है create an application for currency converter. 11th है multiplication table. Then simple interest calculate करना है. Create an application to calculate simple interest. फिर 13th वाला प्रोग्राम क्या है? Create a button called mathematics. When you click on the button, it should provide the information of arithmetic operator. एक बटन क्रिएट करना है HTML. When you click on the button, it should provide the information of HTML events. 15th वाला है write a program to illustrate the use of prompt function. जो alert box आता है ना, total 15 programs है इसमें. So these programs we have to perform one by one. ठीक है. स्टार्ट करेंगे. अच्छा, पहले ये बताओ फर्स्ट थिंग स्टार्ट करने से पहले, फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 3? डू यू नो दिस? कैन यू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 3? Factorial of 3? 6. Yes, right. तो मीन्स पता है ना कैलकुलेट करना. 3 का फैक्टोरियल क्या है? 3 into
3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 6। ठीक है, राइट है। 4 का फैक्टोरियल क्या है, एक और फाइंड करो 4 का फैक्टोरियल। 24 24 24। ठीक है, मीन्स आता है 24, करेक्ट आंसर है। 4 फैक्टोरियल इज 24। ओके, तो फैक्टोरियल पता है, फैक्टोरियल नंबर्स का कैसे आता है पता है हम लोग को। ठीक है, जैसे 2 का 3 का फैक्टोरियल क्या बोली मैंने, आई हैव आस्क्ड 3 एंड 4 का ना। 3 का फैक्टोरियल क्या है 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है। ठीक है, तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 5 का कैलकुलेट करना है जैसे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। नाउ सी yes द yes now see this program, factorial program in javascript के लैंग्वेज में। प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी आर गोइंग टू यूज जावास्क्रिप्ट। पहला प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके मैं एक मिनट, मैं फोन से भी ज्वाइन कर लेती हूँ। See, you have to install SPCK editor. ठीक है, SPCK editor ओपन करो। इंस्टॉलेशन इज इजी, ओनली प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। प्रोजेक्ट्स में जाना है, सी दिस प्लस साइन, न्यू प्रोजेक्ट। In that we have to select HTML. Okay, then give project name. Now see this factorial folder is created. So in this folder, by default, what I am getting, index.html, JS file, and CSS file. So in HTML file, we will do the coding. This is HTML file. ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग करना है। First, we will understand program. Then I will put this program, this one. तो मैं शो करती हूँ अभी। We have to perform the practical in SPCK editor. मैं यहाँ से स्टॉप शेयर कर रही हूँ अभी। ma'am, can you repeat one more time? वॉइस ब्रेक हो रही तुम्हारी। मैम मैं नेट प्रॉब्लम इसलिए। मुझे क्लियर नहीं आ रही आवाज। सी, पहले तुमको इजीली एसपीसी के एडिटर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। देन फोल्डर कैसे क्रिएट किया हम लोग ने। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद यू विल गेट बाय डिफॉल्ट, यू विल गेट एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल एंड एक और कौन सा फाइल था, मैम जेएस योर फाइल, वॉइस इज नॉट कमिंग। जावास्क्रिप्ट फाइल। सबको आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो सरफराज तुम्हारे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है।
बाद में देखो रिकॉर्डिंग सुन लो। तो क्या करना है तुम लोग को, एसपीसी के एडिटर अभी जस्ट आई हैव शोन, ठीक है। तो वो इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफॉल्ट यू विल गेट 3 फाइल्स, index.html, एक जेएस फाइल था जावास्क्रिप्ट, और एक सीएसएस फाइल है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, दिस प्रोग्राम फैक्टोरियल प्रोग्राम जो है ना, index.html फाइल अभी अभी जस्ट मैंने शो की, ठीक है। तो उसमें ये प्रोग्राम प्लेस करना है हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वो फाइल में जो index.html में प्लेस करेंगे प्रोग्राम, देन वी विल रन इट, वी विल गेट द आउटपुट, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोग्राम के स्टेप्स देखो वन बाय वन क्या है। डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, ये लिखने का नीड नहीं है, फाइल में बाय डिफॉल्ट रहेगा लाइन। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है, ठीक है। देन मैम स्क्रीन नहीं शो रहा है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, ओके। अब हो रहा है, Yes, ma'am. डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अभी इसके लिए टैग्स कौन से HTML टैग, HTML प्रोग्राम के लिए HTML टैग, हेड टैग, स्क्रिप्ट टैग। सी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा कौन सा टैग क्लोज हो रहा है, स्क्रिप्ट टैग और हेड टैग क्लोज हो रहा है। बॉडी पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, बॉडी और HTML टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर वी विल राइट JS कोड, जो हमारा लॉजिक पार्ट है, जो हमारा लॉजिक पार्ट है, वो कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वी विल राइट द JS कोडिंग, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग है हम लोग, वी विल राइट इन स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे दिस वन। अभी स्क्रीन शो हो रहा है ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉजिक पार्ट, ये दिस यहाँ से यहाँ तक जो है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। और बॉडी में, बॉडी टैग के अंदर व्हाट वी विल राइट, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। सी टू गेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है, टू गेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर वी रिक्वायर्ड वन टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा वेयर वी विल एंटर द नंबर, एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, एंड वी वांट वन बटन आल्सो, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और एक बटन वी विल क्रिएट। डिजाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स वेयर वी विल एंटर द नंबर टू गेट द फैक्टोरियल, एंड वन बटन वी विल क्रिएट, वन टेक्स्ट बॉक्स एंड वन बटन। तो टेक्स्ट बॉक्स, अभी इसमें डिजाइन बॉडी टैग में हम लोग क्या करेंगे, वी विल जो डिजाइन का पार्ट है हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे। तो ये कोडिंग क्या बता रहा है ये मैं समझाऊंगी, बट ये टैग समझो पहले। बॉडी पार्ट में वी विल डिजाइन, ओके। क्या डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, एक टेक्स्ट बॉक्स रेडी कर रहे हैं और एक बटन वी आर क्रिएटिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्रिप्ट टैग में लॉजिक पार्ट। फंक्शन कहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग, इनसाइड स्क्रिप्ट टैग, और जो डिजाइन करना लाइक टेक्स्ट बॉक्स बटन, वो कहाँ पे रहेगा, इनसाइड दी बॉडी टैग, ठीक है। नाउ लिसन दिस वेरिएबल, मैं क्या करूँ, एक फंक्शन क्रिएट करी, फंक्शन इज द कीवर्ड, ठीक है। फंक्शन एक कीवर्ड है कोई भी फंक्शन क्रिएट करने के लिए। फंक्शन नेम मैं क्या ले रही हूँ, शो, यू कैन टेक एनी, ठीक है, एनी फंक्शन नेम। तो व्हाट आई एम टेकिंग, शो। तो फंक्शन एक कीवर्ड है, उसमें मैं लिख रही हूँ शो मेथड, ठीक है। शो मेथड में यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। उसके अंदर वेरिएबल आई, जो मैं यूज करने वाली वेरिएबल, ठीक है, वो डिफाइन करो, फर्स्ट डिफाइन करना होता है। तो आई और ये क्या है, नंबर के लिए मैंने एनओ ली हूँ, और ये फैक्ट है, यहाँ पे मैंने उसको डिक्लेयर कर दी, सो दैट आई कैन यूज इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो var वेरिएबल इज द कीवर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स आई, नंबर और फैक्ट यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फैक्ट जो मैंने डिफाइन की वेरिएबल, यहाँ पे मैं इसको यूज कर रही हूँ और उसको वन वेरिएबल, वन वैल्यू आई एम असाइनिंग, ठीक है। इसका क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ, 1। नाउ सी दिस, अच्छा पहले ये समझो तो इजी जाएगा थोड़ा।
ये वाला पार्ट, डिजाइन वाला पार्ट। बॉडी टैग ओपन किए, डिजाइन करना है, 1 टेक्स्ट बॉक्स और नंबर 1 बटन। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स के आगे क्या लिखाना चाहिए, दैट यू विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंटर नंबर। ठीक है, एंटर नंबर लिखी मैंने। देन टैग में क्या लिखोगे, इनपुट आईडी इक्वल टू नम। जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रहे हो उसका मैंने आईडी क्या दी, इनपुट आईडी इक्वल टू कोई भी आईडी दे दो, नम दे दी मैंने। ठीक है, फिर बटन, बटन जो है वो, बटन का काम क्या है, बटन जो ये है, इट यूज टू क्रिएट दी बटन। ठीक है, बटन क्रिएट करने के लिए बटन लिखोगे। ऑन क्लिक जो है बटन का एक मेथड होता है, वो मेथड का नाम है ऑन क्लिक। बटन के, बटन जो है, बटन जो एट्रीब्यूट है बटन क्रिएट करने के लिए यूज होता है, उसका एक मेथड का नाम क्या, ऑन क्लिक मेथड। तो ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे मैं वो मेथड का नेम पास करूंगी जो मेरे स्क्रिप्ट टैग में मैंने यूज की। तो स्क्रिप्ट टैग में मैंने शो मेथड यूज की, तो यहाँ पे मैं शो ही लिखूंगी, सेम पास करना है। जो फंक्शन तुम स्क्रिप्ट टैग में क्रिएट करोगे वही फंक्शन नेम यू हैव टू पास हियर आल्सो। ठीक है, फिर टैग क्लोज हो गया, फैक्टोरियल बीच में नाम दे दी मैंने फैक्टोरियल, बटन टैग क्लोज। इनपुट आईडी इक्वल टू आंसर। सी इनपुट आईडी इक्वल टू आंसर, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, बटन में क्लिक होने के बाद वो कहाँ पे जाना चाहिए, कौन सी इनपुट पे जाना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की। इनपुट आईडी इक्वल टू ये वाला लाइन आंसर। सी 1 बाय 1 अभी यहाँ पे आ जाओ। HTML हेड टैग, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या लिख रहे, लॉजिक पार्ट लिख रहे। देन फंक्शन, एक कीवर्ड है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, दिस इज द फंक्शन नेम, शो मेथड। वेरिएबल आई एम डिक्लेयरिंग हियर आई, नो और फैक्ट जो मैं यूज करने वाली हूँ आगे, फैक्टोरियल का वैल्यू आई एम असाइनिंग 1। फिर ये जो नो है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे यूज करी, यहाँ पे डिफाइन कर चुके हम लोग ने। नो इक्वल टू नंबर, अब ये नंबर फंक्शन है, ठीक है, नंबर मेथड है, दिख रहा है नंबर लिखा ब्रैकेट है। ठीक है, तो नंबर मेथड से तुम क्या कर सकते हो, व्हाट वी कैन डू विथ नंबर फंक्शन। सी नंबर फंक्शन जो है क्या करता है तुम्हारा, इट कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट, जो भी तुमने नंबर एंटर किए हो उसका वैल्यू क्या करता है, वो उसके वैल्यू में वो कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो, नंबर फंक्शन क्या करता है, इसके वैल्यू में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर फंक्शन आर यूज टू टेक नंबर न्यूमेरिक डेटा, जो न्यूमेरिक डेटा है उसके लिए हम लोग नंबर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अगर इफ यू आर यूजिंग द नंबर फंक्शन तो क्या होगा, जो जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स क्या है, 1 2 3 4 5, दिस ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो वो राउंड अप करता है, नंबर फंक्शन वो यूज करेंगे तो राउंड अप करेगा उसके नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू को। तो नंबर फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग, फैक्टोरियल में हम लोग क्या नंबर ही मिलेगा ना हम लोग को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी ये क्या है देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। नंबर फंक्शन का काम क्या है कि वो नंबर में इट टेक्स न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को लेता है, अगर कुछ उसको वो एब्सोल्यूट नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करता है, मींस राउंड अप कर देगा नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू में, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नंबर फंक्शन। तो इसके नंबर फंक्शन में समझो क्या आ गया, इफ आई हैव एंटर्ड 4, ठीक है, तो कहाँ पे मैंने एंटर की, टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की, तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, नम है। क्या आईडी है, नम है, आई हैव गिवन नम ना, तो सेम नम यहाँ पे दोगे, सेम नम यहाँ पे दोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे क्या होता है, यू विल गेट द आईडी। क्या आईडी मिलेगा तुमको, ये कमांड है, मतलब ये प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से तुमको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो तुमको पास, सेम वैल्यू तुमको पास करना, इसको रिट्राइव करने के लिए वी विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे जो पास किए हो बॉडी टैग में सेम लिखना है नम, क्लोज करने के बाद लिखना है डॉट वैल्यू। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, जो नंबर मैंने एंटर की हूँ उसका वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसको, उसके राउंड अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू में, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड नंबर फंक्शन। ठीक है, नंबर फंक्शन के अंदर वी हैव पास्ड, क्या पास्ट किए, ये याद रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये क्या करता है, इट रिटर्न्स एन एलिमेंट। ठीक है, क्या ऐसा एलिमेंट रिटर्न करता है, सी सिंपल टर्म्स में यू कैन से
टू एक्सेस, मतलब इफ यू वांट टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट थ्रू आईडी, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है थ्रू आईडी, तो ये कमांड यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मुझे यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू एंटर हुआ है, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी मैंने क्या दी हूँ, नम दी, तो यहाँ पे मैं वो आईडी पास करूंगी नम, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। फिर आगे इसके वैल्यू ऐड करना है, डॉट वैल्यू। अभी ये जो मेन पार्ट है फॉर लूप जो चलेगा, आईडी मुझे मिल गया, और अब मैंने कहाँ पे पास किया, आईडी कहाँ से एक्सेस करी, नंबर फंक्शन के अंदर मैंने पास करी, ठीक है। देन फॉर लूप में सी आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, ये लॉजिक है फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने के लिए, दिस इज द लॉजिक। आई 1 इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, आई प्लस प्लस, फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आई मैंने सेट की 1, ठीक है। अच्छा जो आई है, जो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं ये आई, ठीक है, एनो, तो ये कहीं पे डिफाइन है ना, कहाँ पे डिफाइन की, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर तुम डिफाइन नहीं करोगे तो यू विल गेट एरर, ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो आई, ये एनो, ये सब कहाँ पे, यहाँ पे देखो VAR वेरिएबल, ठीक है, ये कीवर्ड है डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूज इन द फॉर लूप दिस वेरिएबल आई एनो फैक्ट। आई का वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, समझो इफ वी हैव एंटर्ड कौन सा नंबर, एनओ के अंदर क्या है, नंबर आ गया ना, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर एंटर किए वो ये वेरिएबल के अंदर एनओ के अंदर है, ठीक है। तो इफ आई हैव एंटर्ड 4, पहले वो चेक करेगा 1 लेस देन 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4, इज इट ट्रू, ट्रू है ना, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद नंबर 4 मैंने एंटर किया टेक्स्ट बॉक्स में, कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 4 है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, राइट है, ट्रू है, तो ये लूप में जाएगा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, फैक्ट वेरिएबल के अंदर फैक्टोरियल स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, और फैक्ट का मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या दी, असाइन की 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आई, आई में क्या आ गया, क्या आ गया आई में, पहला वैल्यू आई का क्या है 1, 1 इंटू 1 हो गया, फिर आई का वैल्यू, समझ रहे हो बात को, लॉजिक, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगेन वो चेक करेगा यहाँ पे आके, आई का वैल्यू 2 हो गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस प्लस मीन इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज करते जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता। तो ये प्लस प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी आई का वैल्यू 2 हो गया, 2 होने के बाद 2 लेस देन इक्वल टू 4, नंबर मेरा 4 ही है जो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की, ठीक है, मतलब यू कैन टेक अनदर नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, तो मतलब फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, वापस से वो क्या करेगा, फैक्ट में कौन सा वैल्यू स्टोर था पहले 1, 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर क्या है मेरा सी, एक सेकेंड, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये है नंबर, सपोज मैंने 4 ली, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वो क्या चेक करेगा, आई का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू नंबर, तो 1 लेस देन है 4 से, है राइट, तो ये लूप में जाएगा, फैक्टोरियल क्या है मेरा, बाय डिफॉल्ट मैंने 1 दे के रखी फैक्टोरियल में ऑलरेडी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा, आई में क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो गया, फैक्टोरियल के अंदर भी क्या स्टोर हो गया, वन आ गया, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया,
आई का वैल्यू क्या हो गया अभी 2। अगेन चेक करेगा 2 लेस देन नंबर है, 2 लेस देन 4 है, यस इट इज ट्रू। तो यहाँ पे फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, फैक्ट में क्या है 1 ही है और आई मेरा क्या है 1, आई क्या है सॉरी 2 हो गया आई अभी, तो 1 इंटू 2 2, ठीक है। फिर आई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन 4 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। फैक्टोरियल में क्या आ गया 3 आ गया, फिर की इंक्रीमेंट हो जाएगा आई 4 हो जाएगा, तो 4 लेस देन 4 है नहीं है पर इक्वल तो है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वापस से 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो वैसे जितना भी है, ठीक है, आई का वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होते जा रहा है 1 2 3, कब तक जाएगा, नंबर 4 है तो कहाँ तक जाएगा आई का वैल्यू, सिंपली देखो नंबर 4 है तो आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। समझ रहे हो, अगर नंबर 4 है आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा वो 1 लेस देन इक्वल टू 4, तो आई तो इंक्रीमेंट होते जा रहा है यहाँ पे, आई का वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगा 4 तक ही होगा ना, कि कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई का वैल्यू 4 तक इंक्रीमेंट होकर स्टॉप हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहीं तक कैलकुलेट करेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक। जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके, तो कंडीशन जब चेक करने जाएगा वो 5 लेस देन इक्वल टू नंबर 5 लेस देन है ना 4 से, नहीं है 5 इक्वल टू 4 है नहीं, तो ये बॉडी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखेंगे ये, ठीक है। once again I will explain revise this program, once again मैं explain करूंगी and then we will place this program in the SPCK edit and we will run it. So is it clear to all till now? Yes.